السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ YCP MLC دواڈا سرینواس اور مادھوری ٹیکلی پولیس کی پوچھ تاچھ میں شریک ہوئے ہیں۔ جن سینا کے سربراہ پون کلیان کے خلاف دواڈا کے نامناسب تبصروں کے تعلق سے جن سینا کے مقامی لیڈروں کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ٹیکلی پولیس نے 41A کا نوٹس جاری کیا اور اسے پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا، جس کے بعد وہ آج پیش ہوئے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ RS پروین کمار، جنہوں نے KTR کے خلاف ACB کیس کے رد عمل کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حیدرآباد کرائم برانچ کے DCP کے طور پر 2 سال گزارے اور بہت سے مالی جرائم کی تفتیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی تجربے کے ساتھ میں نے KTR کے خلاف ریونت ریڈی کے حکم پر ACB کے ذریعے درج FIR کی جانچ کی۔ دنیا میں تفعیل کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے۔ پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے درج شکایت میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ 55 کروڑ روپے کا ایک پیسہ بھی KTR کی جیب میں گیا۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت اس معاملے میں سرکاری خزانے کو ہونے والا نقصان موجودہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ناجائز فیصلے کی وجہ سے ہے۔ اصل میں یہ فارمولا اس معاملے میں ریونت ریڈی A1 ہے۔ ریونت ریڈی کی وجہ سے تلنگانہ کا خزانہ خالی ہوا ہے۔ تلنگانہ دوبارہ تب چلے گا جب ریونت ریڈی کو دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ ریاستی وزیر صنعت و IT ٹی سریدھر بابو نے کہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ریل پروجیکٹ پر عمل آوری کے درمیان کسی بھی مذہبی ڈھانچے کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ حصول اراضی ایکٹ 2013 کے تحت متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر میں MGBS تا چندرائن گٹا میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کے تعمیری کام کے لیے 24,269 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ریاستی حکومت اس رقم کا 30% حصہ ادا کرے گی۔ مرکزی حکومت کا شیئر 18% رہے گا اور 48% رقم قرض سے حاصل کی جائے گی۔ ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد میٹرو ریل کے نام پر تعمیری کام شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بعض گوشوں کی جانب سے میٹرو ریل کے کرایوں میں اضافے سے متعلق افواہ پھیلائی جا رہی۔ میٹرو ریل کے کرائے میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عید و تہوار، کرکٹ میچز اور نمائش کے دوران میٹرو خدمات کی توسیع کی جاتی ہے۔ اس سال بھی نمائش آنے والوں کو سہولت پہنچانے کے لیے میٹرو خدمات میں توسیع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میٹرو ریل کو 3 کوچز کے ساتھ چلایا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصروف ترین اوقات میں میٹرو ریل میں زیادہ ازدحام دیکھا جاتا ہے۔ تمام دنیا میں بھی مصروف ترین اوقات میں میٹرو ریل میں ہجوم ایسا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل کو اب 3 کوچز کے ذریعے چلایا جا رہا، انہیں 6 کوچز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جبکہ 8 کوچز پر مشتمل ٹرین چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے، اس کی کچھ دیکھ بھال کی ذمہ داری LNT کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصروف ترین اوقات میں ٹرپس میں اضافے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قانون ساز کونسل میں BRS رکن کے کویتا نے حکومت کو مختلف اقلیتی امور پر توجہ دلائی اور اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں سے متعلق حکومت سے استفسار کیا۔ کویتا نے کہا کہ کونسل میں نے مذہبی پیشواؤں کو اعزازیے کی فراہمی سے متعلق حکومت سے سوال کیا تھا، تاہم اس سلسلے میں صرف آدھا جواب دیا گیا۔ کویتا نے دیگر اقلیتی امور سے متعلق ریاستی حکومت سے وضاحت طلب کی۔ کویتا نے کہا کہ وعدے کے مطابق مذہبی پیشواؤں جیسے پادری، خادمین، ائمہ و مؤذن اور
ग्रांथिस को एजाजिए की फराहमी का क्या हुआ? कांग्रेस ने अपने अक़लियती एलामिये में इंतखाबात के वक्त मजहबी पेशवाओं को वजीफे की फराहमी का वादा किया था। सबको पेंशन देने का इजहार किया गया था, ताहम ऐसे तमाम दावों पर आज तक अमल नहीं किया गया। मेरा हुकूमत से मुतालबा यही है कि आखिर मजहबी पेशवाओं को वजीफा देने के बारे में हुकूमत कुछ सोच रखती है या नहीं, इस सिलसिले में जवाब दिया जाए। कविता ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के जरिए एक अलहदा अक़लियती सब प्लान मुतारिफ करने का भी दावा किया था। आखिर इस वादे का क्या हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि गरीब अक़लियती लड़कियों की शादी में कांग्रेस ने 1,60,000 रुपए इमदाद की फराहमी के साथ साथ 1 तोला सोना देने का भी इजहार किया था। ये वादा कब पूरा होगा? एक मरहले पर कविता को सदनशीन सुखेंदर रेड्डी ने उन्हें दिया गया वक्त खत्म होने की तरफ तवज्जो दिलाया, जिस पर कविता ने कहा है कि जिस तरीके से आप वुज़रा को वक्त दे रहे, इसी तरह हमें भी वक्त देना अहम है। वो आधा घंटा बात कर रहे, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें भी वक्त दिया जाए। मैं भी ऐवान की प्राइमरी मेंबर हूँ। कानून साज कौंसिल में बीआरएस रुकन के कविता ने हुकूमत को मुख्तलिफ अक़लियती उमूर पर तवज्जो दिलाई और अक़लियतों से किए गए वादों से मुताल्लिक़ हुकूमत से इस्तफसार किया। कविता ने कहा कि कौंसिल में मैंने मजहबी पेशवाओं को एजाजिए की फराहमी से मुताल्लिक़ हुकूमत से सवाल किया था, ताहम इस सिलसिले में सिर्फ आधा जवाब दिया गया। कविता ने दीगर अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की। कविता ने कहा कि वादे के मुताबिक मजहबी पेशवाओं जैसे पादरी, खादमीन, आइमा व मुअज्जिन और ग्रांथिस को एजाजिए की फराहमी का क्या हुआ? कांग्रेस ने अपने अक़लियती एलामिये में इंतखाबात के वक्त मजहबी पेशवाओं को वजीफे की फराहमी का वादा किया था। सबको पेंशन देने का इजहार किया गया था, ताहम ऐसे तमाम दावों पर आज तक अमल नहीं किया गया। मेरा हुकूमत से मुतालबा यही है कि आखिर मजहबी पेशवाओं को वजीफा देने के बारे में हुकूमत कुछ सोच रखती है या नहीं, इस सिलसिले में जवाब दिया जाए। कविता ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के जरिए एक अलहदा अक़लियती सब प्लान मुतारिफ करने का भी दावा किया था। आखिर इस वादे का क्या हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब अक़लियती लड़कियों की शादी में कांग्रेस ने 1,60,000 रुपए इमदाद की फराहमी के साथ साथ 1 तोला सोना देने का भी इजहार किया था। ये वादा कब पूरा होगा? एक मरहले पर कविता को सदनशीन सुखेंदर रेड्डी ने उन्हें दिया गया वक्त खत्म होने की तरफ तवज्जो दिलाया, जिस पर कविता ने कहा है कि जिस तरीके से आप वुज़रा को वक्त दे रहे, इसी तरह हमें भी वक्त देना अहम है। वो आधा घंटा बात कर रहे, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें भी वक्त दिया जाए। मैं भी ऐवान की प्राइमरी मेंबर हूँ। रियासत तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि केटीआर ने फार्मूला ई केस में हम जानते हैं कि इस कंपनी ने उन्हें पैसे दिए हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन हमने एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि जो तरीका इस्तेमाल किया गया था वो दुरुस्त नहीं है। देखिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का इस ज़िमन में मीडिया के सामने क्या कहना है। ఎన్నికల కోడ్ వచ్చిన తర్వాత పంపి మా డబ్బు మేము పంపినాం, బ్యాంకు నుంచి డబ్బు అక్కడికే పంపినాం, అక్కడ అడ్రస్ కూడా ఉందంటే మేమేం డబ్బు పంపలేదని అంటలేం, డబ్బు పంపింది ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అనే తెలుసు, పంపింది అక్కడికే అని తెలుసు లండన్కు. కానీ పంపిన విధానం సొంతంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలకు సంబంధించి చట్టబద్ధంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అనేక అంశాలకు సంబంధించి వాటిని పక్కన పెట్టి ఈరోజు మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఈ రాష్ట్ర ఖజానాకు నష్టం వచ్చింది అనే దాని మీదనే ఏసీబీ लागा चल्ला के किसानों ने संगारेड्डी जेल के बाहर रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कबायली ग्रुपों ने किसानों का इस्तकबाल किया। लागा चल्ला के किसान संगारेड्डी सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। कांग्रेस हुकूमत के जरिए बनाए जाने वाले फार्मासिटी के लिए जमीन न देने पर किसान 1 माह से ज्यादा अरसे से रिमांड में थे। लागा चल्ला किसानों के अहले खाना संगारेड्डी जेल के बाहर गमजदा देखे गए। बेटी रोती हुए अपने बाप को लपट गई जब उसका बाप जेल से रिहा हुआ।
स्पीकर अयना पत्रुडू के सनसनीखेज तबसरे देखे गए। आंध्र प्रदेश में 3,20,000 लोग धोखाधड़ी से पेंशन ले रहे हैं। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 120 करोड़ माहाना वो खर्च कर रहे हैं और कहा है कि 1,440 करोड़ सालाना और 5 सालों में 7,200 करोड़ रुपए। अगर ये 7,000 करोड़ बाकी रह जाएं तो 3 चीजें जैसे तांडवा रिजर्वायर बनाया जा सकता है। देखिए स्पीकर अयना पत्रुडू का इस जिमन में मजीद क्या कहना है। 3,20,000 ఇంటూ 4,000 వేయండి, నెలకి ఎంత వస్తుంది? నెలకి ఈ తప్పుడు పెన్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి దొంగ పెన్షన్ అంటాను, దొంగతనం తీసుకుని దొంగ అది ఏమంటావే, వారికి నెలకి 120 కోట్లు ఇస్తారు. అందరికి కాదు, ఈ దొంగలకి నెలకి. మరి సంవత్సరానికి అంత ఏంటి? 1,440 కోట్లు సంవత్సరానికి. 5 సంవత్సరాలు. राजस्थान जयपुर में जबरदस्त आग का वाकया पेश आया। हाईवे पर एक ट्रक ने एलपीजी टैंकर को टक्कर मार दी जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। वाकये में 5 अफराद हलाक और 24 शदीद जख्मी हो गए। 5 अफराद झुलसकर शनाख्त से बाहर हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। आजा आराम से। दसना के मुतनाज़े साधु यति नरसिंह आनंद ने दावा किया कि पुलिस की मुदाखलत के बाद सहरोजा आलमी धर्म संसद को मनसूख कर दिया गया जो उन्होंने तलब किया था। श्री पंच दशनम जोना अखाड़ा ने आलमी धर्म संसद को मनसूख कर दिया। शुरू होने वाला जो था, पुलिस ने इस मुकाम पर लगाए गए डेरों को उखाड़ दिया और बावर्चियों को भगा दिया जो इस तकरीब के लिए वहां जमा हुए थे। नरसिंह आनंद ने नामनिगारों को बताया कि पुलिस ने इस मुकाम पर एक नोटिस भी चस्पा की जिसमें ऐसे किसी इज्तिमा की इजाजत देने से इनकार किया गया। नरसिंह आनंद ने इसे सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गुंडागर्दी करार देते हुए कहा है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने इस्लाम और कुरान के बारे में जो कहा है वो गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जो भी सजा दे मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट मुझे जिंदगी भर के लिए जेल भेज दे। ये कहते हुए कि सच बोलना नफरत अंगेज तकरीर के जुमरे में नहीं आता। उन्होंने कहा है कि क्या मुझे बांग्लादेश या पाकिस्तान में हलाक किए गए हिंदुओं की मौत का शोक मनाने का भी हक हासिल नहीं, और यही अखाड़ा हेडक्वार्टर पर मुनाकिदा होने वाला था और ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला का 89 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के सरबराह थे और हरियाणा की सियासत में एक नुमाया मुकाम रखते थे। चौटाला खानदान बुनियादी तौर पर हिसार से ताल्लुक रखता है और ये इलाका जाटों का गढ़ समझा जाता है। हरियाणा की सियासत में जाट बरादरी का खासा असर व रसूख है। रियासत में उनकी आबादी तकरीबन 26 से 28% के करीब है और 36 असम्बली हलकों पर उनका नुमाया असर है। चौटाला मारूफ सियासतदान चौधरी देवी लाल के बड़े बेटे थे जो हिंदुस्तान के डिप्टी वजीर आजम रह चुके थे। देवी लाल के 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। चौटाला पहली मर्तबा 1990 में हरियाणा के वजीर आला बने और मुख्तलिफ अदवार में 4 मर्तबा ये ओहदा संभाला। उनका आखिरी दौर हुकूमत 2005 में खत्म हुआ। ओम प्रकाश चौटाला की तालीम के मैदान में दिलचस्पी भी नुमाया रही। उन्होंने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात इम्तियाजी नंबरों से पास किए। उनका अज़म और मेहनत नौजवानों के लिए एक मिसाल है। चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय और अभय चौटाला। अजय के बेटे दिशनित और दिग्विजय चौटाला जबकि अभय के बेटे किरण और अर्जुन चौटाला सियासत में सरगर्म हैं और अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे। उनके इंतकाल पर सियासत, समाज और अवाम के मुख्तलिफ हलकों पर गहरा गम पाया जाता है।
जोधपुर राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिल पेश कर दिया गया है, बातचीत होगी, पार्लियामेंट के अलावा इसे कई रियासतों से भी पास करना होगा, बहस होने दें। राजस्थान में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग के बारे में वो कहते हैं, ये अच्छी बात है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर में होगी और बजट से पहले की मशावरत तय पा गई है, इसलिए हम जैसे लोगों को जोधपुर जाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि पहली बार अब मैं जैसलमेर में जाऊंगा कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। लोकतंत्र के इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी उसको पास करना होगा। आगे बातचीत चलने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक पहुंच जाता है। राहुल गांधी को धक्के देने के मामले में आपने विपक्ष के ऊपर पलटवार किया, क्या कुछ कहेंगे सर उसको? मुझे कुछ नहीं कहना, जितना कहना था कल कह दिया। ठीक, चलिए। वादी कश्मीर में ज़िमिस्तानी हवाओं का जोर तेज तर होने से लोगों का जीना अजबस मुहाल हो गया और इस दौरान श्रीनगर में रवां मौसम की एक और सर्द तरीन रात दर्ज हुई है, जहां शबाना दर्ज हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में सर्दी की लहर अगले चंद दिनों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। जनूबी कश्मीर का जिले शोपियां वादी का सर्द तरीन इलाका रहा, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जिले अनंतनाग दूसरे दर्जे पर रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -9.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। जनूबी कश्मीर में ही वाक़ सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जोजिला पर कम से कम दर्ज हरारत -24.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में रवां मौसम की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई, जहां कम से कम दर्ज हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -6.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिका इस वक्त शदीद इक्तिसादी बहरान का सामना कर रहा, जिसकी वजह से मुल्क के पास इतनी रकम नहीं बची कि वो अपने सरकारी मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें दे सके। ये सूरत हाल मुल्क में शट डाउन के करीब पहुंच चुकी है, जिसका बराह रास्त असर अमेरिकी मईशत और उसके इंतजामी निजाम पर पड़ेगा। अमेरिकी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था, जिसका मकसद हुकूमत के अखराजात के लिए फंड्स हासिल करना था। ये बिल सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत से पेश किया गया था, लेकिन ये बिल पार्लियामेंट में नाकाम हो गया। इस बिल की मंजूरी न होने की वजह से अमेरिकी हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मजीद वक्त नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कि सरकारी इदारों की फालियत मुतासर होगी और शटडाउन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में बहस हुई थी, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बिल की सख्त मुखालिफत की और उसे मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेट्स ने इस बिल के खिलाफ इसलिए वोट दिया क्योंकि वो चाहते थे कि ट्रंप के पहले साल में उन्हें सियासी फायदा न हो। इसके अलावा ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ अरकान भी इस बिल के मुखालिफ थे। बिल 174-235 के फर्क से नाकाम हो गया और 38 रिपब्लिकन अरकान ने इसकी मुखालिफत की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.